Jainarani students, we are doing a lecture series of class 10th geography and we are studying chapter agriculture. In this lecture, we will be studying about various cropping patterns, or you may also call them cropping seasons. So the three cropping seasons are Rabi, Kharif and Zaid. We are going to have an overview first of all, and then we'll study about them in detail. So if you talk about the Rabi crops, then they are sown in winter and they are harvested in summers. These include the many very important crops like wheat, barley, peas, grams, and mustard. If we talk about kharif crops, then they are sown on the onset of monsoon and they are harvested at the time of between September to October. Now, the main crops that are grown in the kharif season are paddy, which is rice, and maize, jowar, bajra, tur, moong, urd, cotton, etc. Now, in between the Rabi season and the Kharif season, if there is some idle time for your farmland, then you can also sow various short period crops like watermelon, muskmelon, cucumber, vegetable, and fodder. Now, these are called Zayad crops. They are very short duration crops, uh, and they are some extra crops. They are not mainly grown in all parts of India, but in a few parts they are grown as an alternative to Rabi and Kharif crops. Now let's talk about the Rabi crops. These crops, as we discussed, are sown in the winter from October to December, and they are harvested in the summers between April to June. The important crops we already have discussed. Now, the next important thing is the states which are the major producers of Rabi crops. They are Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Uttarakhand, Uttar Pradesh. These are the main states which produce Rabi crops. Now, availability of precipitation during winter months due to western temperate cyclones, as you have already studied in class ninth, that there are some western disturbances which cause rainfall during the winter season in the northwestern part of India. So these northwestern parts like Punjab, Haryana, Uttarakhand, and western Uttar Pradesh, these are the regions which receive rainfall, which receive precipitation during the months of winter also, and these precipitations make this rabi crop successful in these areas. The success of Green Revolution in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, and Rajasthan also led to an increased production of these crops. तो रबी क्रॉप्स में हमने देखा कि ये ठंड के मौसम में बोई जाने वाली क्रॉप है और इसको गर्मियों के सीजन में अप्रैल से जून के बीच में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, इसको काट लिया जाता है इस क्रॉप को. वीट, बार्ले, पीस, ग्राम और मस्टर्ड इसके इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो कि रबी में सो की जाती हैं. इसके अलावा अगर स्टेट्स की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये वो स्टेट्स हैं जो ज्यादातर रबी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड को प्रोड्यूस करते हैं. हमने क्लास नाइन्थ में भी पढ़ा हुआ है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के प्रेसिपिटेशन होता है ठंड के मौसम में भी, और ये प्रेसिपिटेशन काफी हद तक इन एरियाज में जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हैं लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट्स और उत्तराखंड है, कुछ राजस्थान का हिस्सा है, इन हिस्सों में बारिश होने की वजह से यहाँ पर ये रबी क्रॉप्स ज्यादा सक्सेसफुल हैं और इसीलिए ये मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स भी हैं रबी क्रॉप्स के. इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान भी हमने पढ़ा हुआ था कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कैनाल्स के थ्रू पानी का पहुंचाया जाना, वहां पर जो किसान हैं उनका बहुत तेजी से बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेना रेवोल्यूशन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के गाइडलाइंस थे उनको, इस वजह से भी यहाँ पर रबी क्रॉप्स काफी ज्यादा सक्सेसफुली ग्रो की जाती हैं. If you talk about kharif crops, then these are sown on the onset of monsoon. अब आपको पता है कि ऑनसेट ऑफ मॉनसून अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग समय पर होता है, इसलिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में डिफरेंट टाइम पर खरीफ क्रॉप्स सो की जाती हैं और इनका हार्वेस्टिंग का टाइम भी सितंबर से अक्टूबर के बीच में होता है. इम्पॉर्टेंट जो खरीफ क्रॉप्स हैं हमारी, वो है पैडी, जिसको कि हम राइस भी कह सकते हैं. पैडी का मतलब होता है धान और इसी धान से ही राइस निकलता है. सो paddy, maize, jowar, bajra, tur, moong, urad, cotton, etc. These are the kharif crops.
इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स। और अगर स्टेट्स की बात करें देन आसाम, वेस्ट बंगाल, कुछ जो कोस्टल रीजन्स हैं हमारे जैसे कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के, केरला के रीजन्स, इसके अलावा महाराष्ट्र और कोंकण कोस्ट का जो एरिया है ना, वहां पर उत्तर प्रदेश और बिहार भी खरीफ क्रॉप्स के मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। अगर बात करें पैडी क्रॉप्स की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं खरीफ सीजन की, तो उनके प्रोडक्शन में पहले पंजाब और हरियाणा शामिल नहीं थे, लेकिन आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन एंड आफ्टर the artificial irrigation facilities have been made available in these states with the help of canals, etc., then these states have also become an important producer of paddy or rice. असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा जैसे स्टेट्स में तो राइस के ही तीन तीन क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, मतलब एक साल के अंदर तीन क्रॉप ग्रो किए जाते हैं। नॉर्मली बाकी के स्टेट्स में क्या होता है, ओनली वन क्रॉप इज ग्रोन, बट असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, दीज आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ वी सॉरी राइस, एंड दे आर ऑल्सो द मेजर कंज्यूमर्स ऑफ राइस। और इसीलिए वो एक ही साल के अंदर तीन क्रॉप्स ग्रो करते हैं राइस की, जिनके नाम भी अलग होते हैं, ओस, अमन और बोरो। ये तीन क्रॉप्स ये ग्रो किए जाते हैं आपके खरीफ सीजन में। देन कम्स जायद क्रॉप्स। जायद बेसिकली शॉर्ट सीजन क्रॉप्स होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, और ये समर मंथ के टाइम पर लगाई जाती हैं, जिसमें कि आप जो समर में अक्सर जो फल खाते हो जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन वगैरह, जैसे खीरा हो गया, आपका कुकुम्बर हो गया, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये जायद क्रॉप्स में आती हैं, ये जायद सीजन में ग्रो की जाती हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए कि राबी क्रॉप टाइमली सो हो गया, टाइमली हार्वेस्ट हो गया अप्रैल के टाइम पर और मई के बीच में, तो फिर दूसरी क्रॉप आपको कब लगानी है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून में, जो खरीफ क्रॉप है। मान लीजिए कि जुलाई में आता है मॉनसून आपके स्टेट में, तो उस बीच में ये जो खाली टाइम है वहां पर लोग जो फार्मर्स होते हैं वो जायद क्रॉप्स को ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ मतलब जायद और जो आपकी खरीफ और रबी है उनके बीच के सीजन में जो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, आइडल टाइम पीरियड होता है जो फार्मलैंड्स का, वहां पर इनको ग्रो किया जा सकता है। Now, if we compare these three seasons, then as you can see in the slide, Rabi crops are winter crops, Kharif are the monsoon crops, and Zaid are shown in between these crops. Then Rabi crops का harvesting season, Kharif का harvesting season दिया हुआ है. Zaid is a short intervening crop, as we have already discussed. Then the crop are harvested. It is written in the third point. Availability of precipitation. This is very important. When you are writing the difference between Rabi, Kharif, and Zaid, you must write the availability of precipitation. So in the Rabi season, as we have discussed, that western disturbances contribute in the success of these crops. So availability of precipitation is due to the western disturbances, which make it successful. In the Kharif season, as we know that these are the monsoon crops, then definitely the monsoon brings सक्सेस टू दीज क्रॉप्स। और ये कह सकते हैं आप कि मानसून में बारिश, और इसके अलावा जो अलग से भी कभी कभी इरिगेशन की जरूरत पड़ जाती है अगर बारिश नहीं होती है सही से, तो उनकी वजह से खरीफ क्रॉप्स हमारी सक्सेसफुल रहती हैं। और जायद क्रॉप्स तो प्राइमरली इरिगेटेड ही होती हैं, क्योंकि ये ऐसा टाइम पर होती हैं जबकि बारिश नहीं होती है, मतलब कि आप बात कर रहे हैं मई जून के बीच की, तो उस समय तो बारिश होनी नहीं है। सो दे आर इरिगेटेड क्रॉप्स। इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स के नाम हमने डिस्कस कर लिए हैं, और जो इसके स्टेट्स हैं मेजर प्रोड्यूसिंग, वो भी आप डिफरेंस में लिख सकते हो। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे। आपको अगर कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट होता है, देन यू कैन डेफिनेटली आस्क दैट इन द लाइव सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड जय हिंद।